السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات محترمہ جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی خوبصورت باتوں سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ میرا ڈیزیگنیشن بے شک نہ بولا کریں۔ کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جنید بھائی، اصل میں جب سے میں وفاق سے صوبے میں ٹرانسفر ہوئی ڈیزیگنیشن کی طرف سے تو میرا دل ٹوٹ گیا، اور ویسے بھی اللہ کے فضل سے میں صرف صوبے کی آواز نہیں ہوں، میں وفاق کی بھی آواز ہوں، اور میرے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ پی ٹی آئی کی آواز یا حکومت کی آواز۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ آپ پنجاب میں ہونے کے باوجود وقتاً فوقتاً آپ وفاق میں بھی چٹکیاں بھرتی رہتی ہیں اپوزیشن کو۔ جنید صاحب، چٹکیاں نہیں بھرتی، یاد تو آتا ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب بیاہی ہوئی لڑکیاں میکا بھول جاتی؟ دیکھیے تو وفاق آپ کا میکا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، جمپل تو میں اصل میں وفاق کی ہی ہوں، اور اگر میں صوبے میں ودیا کر دی گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مجھے وفاق بھول جائے گا۔ اس لیے مجھے گاہے گاہے وفاق کی بھی آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ اور ویسے بھی جنید صاحب، جس قدر مجھے بولنے پہ ملکہ حاصل ہے، وفاق بھی چاہتا ہے کہ فردوس عاشق اوان ہماری طرف سے بھی بات کرتی رہے۔ وفاق بھی چاہتا ہے، باقی صوبے چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ واپس پیپلز پارٹی میں آ جائیں اور صوبے میں ان کے لیے کام کریں۔ خیر، میں اس بات کو مائنڈ نہیں کروں گی جنید صاحب، چونکہ مجھے معلوم ہے آج کل آپ لافٹر بھی لیتے ہیں۔ شروع میں آپ سنجیدہ تھے، مگر اب آپ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی ہی میرا سب کچھ، میرا میکا بھی اور میرا سسرال بھی پی ٹی آئی۔ میں اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی میں رہ کے اس کی خدمت کرتی رہوں گی۔ اور بولنے کے حوالے سے جنید صاحب، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر طرح کا بول لیتی ہوں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں نے کووڈ-19 کے حوالے سے ایس او پیز کو مد نظر رکھنے کے لیے جو بیان دیا تھا وہ پوری دنیا میں پاپولر ہوا، بلکہ آپ یقین مانیے کہ سوشل میڈیا پر میرے وہ ایس او پیز کے بیان کے جتنے فالورز ہیں اتنے میرا خیال ہے ابھی تک کرینہ کپور یا دیپیکا کون کے بھی نہیں۔ بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا وہ بیان سن کے یہ بالی ووڈ والوں نے مجھے ڈائیلاگ لکھنے کی بھی آفر کی، اور صرف ڈائیلاگ ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وقت ہو آپ کے پاس تو ہم تو کہانی بھی آپ سے لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور ہالی ووڈ کا تو آپ کو پتہ ہے، جو میں نے ایس او پیز کے 2 اجزاء بتائے ہیں، اس کے بغیر ہالی ووڈ کی تو فلم ہی مکمل نہیں۔ اس لیے ہالی ووڈ والے بھی بیچارے منتیں کر رہے ہیں کہ پلیز فردوس کم ٹو ہالی ووڈ۔ سو میں تو جنید صاحب ایسی چیزیں جو ہیں ان کی طرف سے یہ صرف اتنا ہی کہوں گی کہ عہدے کو جو ہیں وہ ضرورت نہیں ہوتے انسان کا جو اپنا کام ہوتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ عہدوں کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں رہتی جب وہ کام اچھا کر رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سنا ہے آج کل آپ اخبار نویسوں کو پریس کلب میں جا کے ویکسین کے ٹیکے لگا رہی ہیں کرونا کے۔ دیکھیے جنید صاحب، صرف میں یہ شو کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے انجیکشن لگوائیں۔ یہ جو کرونا کا ٹیکہ ہے یہ مضر نہیں ہے، یہ نہ ہی کوئی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ میں بڑے بڑے صحافیوں کو اس لیے جا کے خود ٹیکہ لگا رہی ہوں تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی لگوا رہے ہیں ٹیکہ، اس لیے یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، برسبیل تذکرہ، یہ جو آپ نے صحافیوں کو پریس کلب میں جا کے ویکسین لگائی ہے، اس میں کوئی مائنڈ کنٹرول ڈیوائس تو نہیں ہے جو کانسپریسی تھیریز چل رہی ہے؟ چپ وغیرہ؟ وہ گل سنو، ایک کدو کسے دے کہن تے ڈکے جاندے جے۔ صحافیاں دا مائنڈ کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ تسی بھی چنگی طرح جان دے ہو، تسی آپ سینئر صحافی ہو، تہاڈی کیڑی لیڈیز کپڑے دی دکان ہے؟ یہ کیا بات کی ہے، لیڈیز کپڑوں کی دکان، یہ کیا بات؟ تہاڈے ورگے سونے منڈے لیڈیز کپڑے ہی ویچ دے نے۔
ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। कारोबार तो वो भी अच्छा है। देखिए बाकी सियासतदानों को ये बात साबित करने के लिए खुद लगवाने पड़े थे। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहरहाल एक डॉक्टर है, जी जी। डॉक्टर साहब ने लगा के ये बात साबित की। अरे क्या कह रहे हैं? देखिए जुनैद, मैं तो कौम से ये कहूंगी, ये बड़ी भोली कौम है, इनको सीधे लफ्जों में भी मुतमईन करना चाहिए। बहुत अच्छी। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर ये कौम पिछली हुकूमतों के टीकों से बीमार नहीं हुई तो फिर कोरोना वैक्सीन का टीका भी इन्हें कुछ नहीं कहे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इस टीके से बुखार भी नहीं चढ़ता? वे नहीं चढ़दा वे, तू क्यों डरन डे है? तेरे ते पता नहीं कपड़े किवें चढ़दे ने ते तेनू बुखार दी फिक्र पई। वखरे ही नामुराद वड्डी उम्र का बंदा लगा फिर। आप ही मुझे आज ही कोड नंबर मिला है, इंशाल्लाह मैं तेनू कोड नंबर दी जरूरत भी नहीं सी, तू जाके सिर्फ तरला लै ते ला देणगे तेनू टीका। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੁੰਦੇ। अच्छा डॉक्टर साहब आजकल आप एक और महाज पे भी तो डटी हुई है ना, जो जहांगीर तरीन ग्रुप की एक्टिविटीज है। अच्छा उस हवाले से आपने एक बयान दिया बड़ा अजीब सा, आपने कहा है कि कोई प्यार से मांगे तो वजीर आजम इमरान खान अपनी जान भी दे सकते हैं लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये आप उनके बेहाफ पे जान लेने की बात है? जी जुनैद साहब, मैंने खुद आजमाया है। एक दफा जुनैद साहब काबीना के इजलास में किसी मेंबर ने सिर्फ इतना कहा है कि खान साहब आप तो कहते थे कि मुझे इस कौम के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो कर दूंगा, तो एकदम उठ के पहले कान दे नाल हथ रखिया ने, फिर वहीद मुराद अंग्रेज टर्न लई ने ते दूजी कान ते बंदूक टंगी वेखी ने ते दौड़ के मुनव्वर ज़रीफ अंगर उस बंदूक कोल गए ने ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਲਾ ਵੀ ਲਈ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਜਵੇਦ ਉਹ ਉਸਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। वो क्या कर रहा था? वो तो काबीना में नहीं है। जुनैद साहब ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲ ਇਸ ਸੀਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। जी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਅੰਗਰ ਬੰਦੂਕ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਤੇ ਫੈਸਲ ਜਵੇਦ ਇੱਕਦਮ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਅੰਗਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। वाह जी वाह। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਪਸ ਟੰਗ ਦੇ। लेकिन ये रोल तो कोई वजीर भी कर सकता था ना। ਮਗਰ जुनैद साहब ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਮੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਬੰਦੂਕ ਲਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ जुनैद साहब, जुगत बुराए जुगत नहीं होनी चाहिए। और ये जम्मी फ्लैट 'ਚ बैठी बच्चे ने दस रही होंगी कि पहले हम बहुत अमीर थे, ये तो हालात हमें यहाँ ले आए। तो मेरा ख्याल है ये जहन में रखें कि इमरान खान साहब को प्यार से कहें तो वो जान भी कुर्बान कर दे। ब्लैकमेल उनको कोई नहीं कर सकता जुनैद साहब, ये अपोजिशन की भूल है। और अपोजिशन वैसे भी आजकल सिर्फ इसलिए गर्म हुई है कि जिले सुबहानी दोइम को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही और वो तड़पते फिर रहे हैं। आपने देखा कि अशाइये दे रहे हैं और बेजान पीडीएम में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है जिस तरह 70 मॉडल गाड़ी पे आप जितने मर्जी पैसे लगा लें वो 3-4 दिन बाद फिर वर्कशॉप ही होंगी। उस मस्कीननी च भावें हाई ऑक्टेन पेट्रोल भी पवा लवो ना तो उन्हें फप 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 फप। ये क्या मिसालें दे रही है? चलो रहन दियो इस मिसाल नूं, ए मिसाल ले लवो, जे बासी दाल च देसी कुकड़ भी पा लो तो खान दे काबिल नहीं हुंदी। इसी तरह पीडीएम में बेशक अब जिले सुबहानी जोर लगा ले या फजलुर रहमान साहब जोर लगा ले, ये बेचारी अब खाने के काबिल नहीं है। डॉक्टर साहब ये मिसाल भी दी जा सकती है ना कि पीडीएम की हालत उस उम्र रसीदा खातून वाली है जो लाखों रुपए का भी मेकअप कर ले तो वो खूबसूरत नहीं लग सकती। ठीक है भी मिसाल, मगर सानू की इस गल नाल मैनू तो अल्लाह दे फजल नाल जवानी च समीता पाटिल कहंदे सन। अच्छा बड़ी याद है, आपने ये भी एक बयान दिया है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी सहेलियां मुझे कहती थी कि तुम स्मिता पाटिल जैसी हो। जी जुनैद साहब, मेरी हल्की हल्की शक्ल मिलती थी स्मिता पाटिल से। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आवाम को कि ये अपोजिशन की बातों पे कान ना धरे। ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ ये इमरान खान के खौफ से किया जा रहा है।
اور اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف ملک جا رہا ہے، اس لیے بھی یہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ عوام کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ اپنے دونوں کانوں کے درمیان والی سڑک کو خالی رکھیں تاکہ اپوزیشن کی بات جب آپ کے ایک کان میں گھسے تو دوسرے کان سے آسانی سے نکل جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اپنی اس آفر پہ ابھی قائم ہے نا، جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو اپنی جان لندن میں غیر محفوظ لگتی ہے تو وہ پاکستان آ جائیں، میں ان کو مکمل سیکورٹی دوں گی؟ میں تو مراد جنید صاحب حکومت ہے نا جی، حکومت نے سیکورٹی دینی ہے تو دے گی حکومت سیکورٹی۔ میں کیڑا اوتھے انہاں دے بوئے اگے 7 mm لے کے کھلو جانا۔ یہ 7 mm سے مجھے یاد آیا آپا جی، عید والے دن میں نے آپ کو اتنی کالیں کی، آپ نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ تو آپ میسج بھیج دیتے عید مبارک کا۔ عید مبارک نہیں کہنا سی آپا جی، مینوں ناکے تے پولیس نے روکیا سی۔ تو میں کی ناکیاں تو بندے چھڈاندی پھرنی، ویسے بھی تینوں ناکے تو چھڈان دا کی فائدہ، تینوں اگلے ناکے تے اگلیاں پھر روک لینا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیچارہ اپنے گھر کا پتہ بتاتا ہے نا کہ کتنی دور ہے، تو بتاتا ہے بس 11 ناکے دور ہے میرا گھر۔ کچھ منہ یہ ہو جے ہوندے نے جڑے پولیس واسطے بڑے فیورٹ ہوندے۔ آپ خدا کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھیں اور مہنگائی کی طرف آئیں۔ مٹن بیف کو چھوڑیں، آپ لوگوں کی حکومت میں مرغا بھی آسمان سے باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ ساڈی حکومت جی کر رہے ہر گل ہن ساڈے تے نہ پائی جاؤ، اسی تے بچپن تے ویکھن ڈے ہیں مرغا آسمان نال گلاں کردا ہے، او جدوں پانی پیندا ہے پھر آسمان نال گلاں کردا ہے، پھر پانی پیندا ہے پھر آسمان نال گلاں کردا ہے۔ ساڈی حکومت دا اے تے کی قصور ہے؟ یہ انہوں بچپن دیاں عادتاں نے مرغے نے۔ ٹھیک کہہ رہے آپا جی، ساڈا زلفی بھی انجی پیندا جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مہنگائی کو چھوڑے سیاست کی طرف آئیں۔ آئے بے ایک پاسے مینوں رہن دیو، کدی مہنگائی کو چھوڑے کبھی سیاست کو چھوڑے۔ آپا جی تسی پیپل پارٹی جی آ جاؤ۔ کڈا شوق ہے نام مراد، جڑے پاسے میں لگی ہیں مینوں اوتھے ہی لگا رہن دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے حلف اٹھا لیا، تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اسمبلی میں آ گئے تو آپ کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ جنید صاحب ہمیں کیا خطرہ ہونا ہے؟ جڑے پہلے تیر چلان ڈے نے وہ چودھری نثار صاحب بھی آ کے چلا لین، یہو جہا بندہ تے ویسے بھی تیر چلائے تے آپ پیچھے ڈگ پیندا پھر اٹھ کے پوچھن ڈیا ہوندا ہے کی ہویا کی ہویا؟ پھر قریب سے ایک بندہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، تہاڈی وگ ڈگ پئی ہے۔ ظاہر ہے جنید صاحب تیر دا بھی ایک جھٹکا ہوندا ہے۔ ناظرین یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے WHO سے یہ پلیج بھی کیا ہوا ہے کہ 2025 تک ہم یہاں پہ سگریٹ نوشوں کی تعداد میں 30% کمی لا کے دکھائیں گے آپ کو۔ اور اس وقت آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں، پوری دنیا میں سگریٹ نوشوں کی تعداد کے حوالے سے 4تھے نمبر پہ ہے۔ اچھا بھائی جان، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے علیحدگی میں۔ نہیں تو ساریوں کے سامنے پوچھ لو، ایسی کون؟ سب کے سامنے جی۔ میں علم سب میں بانٹتا ہوں، نہیں علم سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوقوفی بھی سارے ہیں سے ہونی چاہیے۔ ایک ذاتی مشاہدے کی بنیاد پہ تم میرے ایک سوال کا جواب دو، میرے ایک مفروضے کا جواب دو کہ اگر ہم سب کو پتا ہو کہ چائے کے اس کپ میں تھوڑا سا زہر بھی شامل ہے جو انتہائی خطرناک ہے، تو کیا ہم میں سے کوئی اس چائے کے کپ میں سے ایک گھونٹ بھی پینے کو تیار ہوگا؟ گوگا کیوں؟ انہیں کہنا یار ہن صرف اینی گل واسطے کہ جڑی اخیر تے کرنی ہے او اے تے زہر سی، او دے واسطے میں ہن چاہ چھڈ دیاں۔ سر جی میں تو بالکل زہر والی چائے نہیں پی سکتا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ زہر جلد کو متاثر کر دیتا ہے۔ نہیں تو اگر جلد کو متاثر کر بھی دو تو تم نے قبر میں جا کے کہنا آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ ویسے پاجی اگر چائے دے وچ باکر خانی پالو گے تو زہر دا اثر مر جائے گا۔ بتاؤ یار کیا بتانا چاہتے تھے؟ یار میں کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، سارے میرے جو میں سچویشن کریٹ کرنا چاہتا تھا اس میں سے ہوا ہی نکال دیا تم چلو لوگوں نے۔ کوئی بات نہیں، نمان بیٹے ایک چائے اور تھوڑا جہا زہر پا کے لے آؤ۔ میں بتانے یہ لگا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ اس میں زہر ہے یقیناً اس کا ایک گھونٹ کیا اس کے قریب سے گزرنے سے بھی آپ ڈریں گے۔ بالکل صحیح۔ لائک آپ دیکھ لیں کرونا ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں شخص کو آلریڈی کرونا ہے تو آپ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، یہی ہوتا ہے نا یار۔ پوری دنیا میں
इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जा रहा है। और मैं हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में जो माशरे और कौमें तरक्की कर रही हैं, वहाँ पे जो तंबाकू नोश हजरात हैं, सिगरेट नोश लोग हैं, उनकी तादाद में खासी कमी वाक़ हो रही है तेज़ी के साथ। अच्छा। लेकिन कैसा हमारा बदकिस्मत माशरा है कि हम इतनी कोशिशें भी कर रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को अवार्ड भी दिया है कि कोशिशें आप लोग कर रहे हैं। लेकिन कोशिशों का नतीजा ये निकल रहा है कि कुछ हमने कोई 13 अजला को वादा किया WHO से कि हम इस्लामाबाद समेत इन 13 अजला को फोकस करेंगे और यहाँ पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी की जाती है, इन पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। और उन्होंने ये WHO से प्लेज किया है कि 2025 तक हम यहाँ पे सिगरेट नोशों की तादाद में 30% कमी ला के दिखाएंगे आपको। और इस वक्त आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में सिगरेट नोशों की तादाद के हवाले से चौथे नंबर पे है। बल्कि चौथे पे भी गालिबन इसलिए नहीं है, दूसरे नंबर पे है प्रैक्टिकली। चौथे पे इसलिए है कि चीन पहले नंबर पे है, उसके बाद जो है वो पापुआ न्यू गिनी है और फिर अल्जीरिया है। तो ये दो मुल्क जो है पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में तो ना होने के बराबर है ना। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिगरेट नोशी के हवाले से दूसरे नंबर पे है। हर गुजरते दिन के साथ ये बड़ी खौफनाक स्टैटिस्टिक्स है। ये जो मैं फिगर बताने लगा हूं, अगर आप खुद करें ना इसको, आप ज़रब तकसीम करें तो ये इतने खौफनाक हैं कि इंसान की जान निकल जाती है। घबरा ना जाना, मोबाइल च कैलकुलेटर होता है। सुनो तो सही, ये किस तरह कैलकुलेट करके देखो। मैं हैरान हो गया जब मैंने खुद किया है। आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में सबसे खौफनाक और अलार्मिंग चीज़ है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में नए जो सिगरेट नोश पैदा होते हैं ना, जो पहली दफा सिगरेट पी रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है, यौमिया पाकिस्तान में 22,000 लोग सिगरेट शुरू करते हैं। 22,000 लोग, ये महीने के 6,60,000 बनते हैं। होए इधर असल में ज्यादा सिगरेट इसलिए भी पिया जाता है कि अक्सरियत मांग के पींदी है। हाँ, और यार ये रह के सिगरेट दे दविंदर। हाँ, और दूसरी ये भी बात है कि सस्ते हैं। इसका भी हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि सिगरेट तो एक ऐसी चीज है कि इस पर कोई भी हुकूमत अगर 200, 300, 400% भी ड्यूटी लगा देती है ना, तो मैं उस हुकूमत के स्टेप का साथ दूंगा कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अगर इन आदादो शुमार को ज़रब तकसीम करें तो पता चलता है कि इस तरह तो पाकिस्तान की आबादी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसमें अर्ज की है कि बहुत सारे लोग जो है वो सिगरेट छोड़ने की बार बार कोशिश करते रहते हैं। सिगरेट नोशी कई लोग छोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है इन आदादो शुमार में वो ये है कि जो सिगरेट नोशी के नतीजे में उनकी मौत भी जल्द वाक़ हो जाती है, इस दुनिया को भी छोड़ जाते हैं, वो भी माइनस हो जाते हैं साथ साथ। कुछ लोग सिगरेट नोशी छोड़ देते हैं, कुछ लोग दुनिया छोड़ देते हैं। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। बंदा पूछे अब्बा जी को नेक काम तो नहीं सिखा रहा। बाहर तंबाकू नोशी खत्म ही उन्होंने इस तरह की है। एक तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पाबंदियां लगाई की है। दूसरा इतना महंगा हो गया सिगरेट कि आप हैरान होंगे कि वहां पे जैक्सन, जॉनसन, जोली सब मांग के पी रहे होते हैं। हाँ, इसलिए कि देखो पाकिस्तान में तो अब आपको जो एक आम 20 सिगरेटों वाली डब्बी है वो 30 रुपए से शुरू हो जाती है। तालिब इल्म जो है या गरीब आदमी जो है वो 30 रुपए की एक दिन में एक डब्बी तो अफोर्ड कर ही लेता है। वो बच्चा है, बड़ा है, मजदूर है, अफसर है, वो 30, 40, 50 रुपए की एक डब्बी खरीद सकते हैं। अब ये जो 30-40 रुपए की जो डब्बी पाकिस्तान में मिलती है, आपके हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में वो 300-400 रुपए की मिलती है। 30-40 रुपए की यहाँ पे मिलती है। असल में सिगरेट नोशी के हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो अलार्मिंग है, खौफनाक है, दिल दहला देने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। यानी सालाना 78 अरब सिगरेट फूंके जाते हैं, 78 अरब, और उसमें से 33 अरब सिगरेट जो है वो गैर कानूनी है। अब आप पूछेंगे जी गैर कानूनी सिगरेट क्या होता है? गैर कानूनी सिगरेट से मुराद ये है कि या तो वो स्मगल्ड होते हैं सिगरेट, या प्रॉपरली पाकिस्तान में यानी ब्रांड नेम के साथ नहीं आते, जाली सिगरेट बनाए जाते हैं। छोटे छोटे फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। केपी में उनकी बहुतात है। तो ये तकरीबन 10 अरब सिगरेट जो है वो इलीगली यानी स्मगल्ड होते हैं। बाकी 23 अरब सिगरेट जो है वो गैर कानूनी इन छोटी मोटी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि 78 अरब सिगरेट जो हैं वो पाकिस्तान में पिए जाते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाईजान ये जो सिगरेट नोशी की वजह से पाकिस्तान के अवाम की सेहत का सत्यानाश हो रहा है, वो तो सामने आ गया, लेकिन जो मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है
78 अरब सिगरेट पिए जाते हैं और पाकिस्तान की मईशत को पहुंचने वाला जो नुकसान है वो भी एग्जैक्टली 78 अरब रुपए ही है। अल्लाह माफ करे जिया छड़ दे खुदा दा वास्ते ही छड़ दे। क्या फजूल बोलते जा रहे हो? और जी बार बार मुझे कह रही है कि गौरी साहब को बताएं कि धुएं से रंग भी काला होता है। ये धुआं कहाँ से उठता यहीं से उठता है जहां से आवाज आ रही है। अच्छा सर, सिगरेट महंगा करने के साथ साथ कानून भी सख्त करना चाहिए। इसके अलावा और दूसरा हल ही कोई नहीं है आपके पास। शुमाली कोरिया जहाँ पे अक्सर आपने सुना होगा कि जी फलां गलती पे, फलां कानून की खिलाफ वर्जी पे इस तरह की अजीबोगरीब इंतहाई सख्त सज़ाएं, वहाँ पे जो बंदा किसी पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया उसको बगैर किसी ट्रायल किए पुलिस को ये इख्तियार है कि 30 दिन के लिए उसको जेल भेज दे। वहां पे उसको गोगा जी 50% खाने के लिए कम दिया जाएगा दीगर कैदियों की निस्बत, और 50% दीगर कैदियों से ज्यादा मुशक्कत ली जाएगी। बाबू जी मेरे खिलाफ ही कानून बनाए जा रहे हैं, मैं तो सिगरेट पींदा ही नहीं। एक और तरीका है सिगरेट छुड़वाने का लोगों को, बिल्कुल ही मुफ्त कर दियो। रजाइयां च वड़ के भी सिगरेट पीवी जान, आपे जिदी जिदी रजाई सड़ेगी वो सिगरेट छड़ देगा। अच्छा, इसमें एक और बात जो पब्लिक को रियलाइज कराने वाली है वो ये है कि जो सिगरेट पीते हैं वो सिर्फ अपने ही फेफड़ों का या सेहत का बेड़ा गर्क नहीं कर रहे होते, वो इर्द गिर्द के इंसानों का भी नुकसान करा रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं खामखा का। ये ऐसे लाशऊरी तौर पे ही इंसान दूसरे इंसानों के खिलाफ एक काम कर रहा होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि डॉक्टर शहरयार साहब कहें कि सिगरेट ना पिए, वरना आपके पास दिन थोड़े हैं। अच्छा, पता है क्या हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जनाब अब तो जो होना था हो गया है, मैं तो इतने साल से पी रहा हूँ, अब तो अगर मेरे फेफड़े खराब होने तो वो हो चुके होंगे। तो ऐसे लोगों की खिदमत में मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानी फेफड़ों में ये एक सलाहियत है कि वो हील अप हो जाते हैं। अगर सिगरेट पीने के नतीजे में आपके फेफड़े खराब हो गए तो अगर आप सिगरेट छोड़ देंगे ना तो वो कुछ मुद्दत के बाद जो है ना जो आपके फेफड़े दोबारा अपनी असली हालत में, सेहतमंद हालत में वापस आ जाएंगे। हाँ, वाह वाह वाह। जाहिर है कोई भी चीज जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है उसको आप छोड़ेंगे या उससे दूर होंगे तो अल्लाह ताला का ये सिस्टम है, अल्लाह मेहरबानी फरमाता है, ऑटोमेटिक आपकी वो वहाँ हीलिंग हो जाती है। अच्छा, सिगरेट नोशी का एक बड़ा ही खौफनाक एस्पेक्ट ये है कि तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उन्होंने इसको महसूस कर लिया है कि ये हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली ये दोनों के लिए तबाही लाता है, इसलिए उन्होंने बड़े सीरियस स्टेप्स लिए हैं और इन पर खासी हद तक उन्होंने सिगरेट नोशी की तादाद में या सिगरेट नोशों की तादाद में वो कमी लाने में कामयाब हो गए। ये जो नौसत है अब ये तरक्की पजीर मुल्कों तक महदूद होकर रह गई। दुनिया में 1 अरब 10 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, इनमें से 80% का ताल्लुक जो है वो तरक्की पजीर मुल्कों से है। वो इसलिए कि इसके साथ जुड़ी ऐसी बातें हुई हैं, एक तो कहते हैं ना जी कि ये टेंशन कम हो जाती है। तरक्की पजीर ममालिक में जाहिर है माड़े से बंदे ज्यादा हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं, तो वो सबसे ज्यादा सिगरेट पीता ही गरीब बंदा है। बेरोजगार बंदे धड़ा धड़ सिगरेट पी रहे होते हैं। घर च झगड़ा हो गया जी, बेचारा कोठे ते बह के सिगरेट पी रहे हैं, वो धुप्पे बैठे हैं यार बस भरजाई तेरे नाल लड़ाई मैं थल्ले जाना ही नहीं। ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾ ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ तेरा ना कर। फिर और एक वजह ये है कि अमीर बंदा जो है ना जी वो फिर भी मौत से ज्यादा डर रहा होता है कि इन्हें पैसे जेड़े कमाए ने पीछे किथे जाने। माड़ा बंदा ਉਹਨੂੰ परवाह ही कोई नहीं होंदी, ना बैंक च कुछ ना घर च कुछ, जो है ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। जेब च कोई पैसे बचे भी हों तो कह रहे होंगे जा काका ये सिगरेट फड़ लिया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मुराद अली शाह साहब के तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो मलंग से आदमी है। मुलाकात तो गो अय्यी की नहीं कभी हुई उनसे, मगर मुझे यकीन है कि वो 3-4 बार आप ही बैल बजे आके ना तो उठ के फिर खुद ही चाय ले आते हैं। नाज़रीन, वतन अजीज़ के बड़े शहरों और ख़ास तौर पे आजकल कराची में सफाई का मसला इंतहाई संगीन होता जा रहा है। जगह जगह पे आपको कचरे के ढेर नहीं बल्कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई नज़र आती हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए, जानने के लिए, कुछ खोजने के लिए आज हमने बुलाया है एक छोटी सी पहाड़ी को। हाँ, पहाड़ी को शहजाद नाम है भैया मेरा, शहजाद। ये KMC का अफसर है जी, जिसमें कराची में जिसकी जिम्मेदारी है
बुनियादी तौर पे कूड़ा उठाने की, हाँ जी। ये उसका उस सेक्शन का भी हेड है ये। भाई वो जो आपने पहाड़ी बोला है, वो कचरे की पहाड़ी रोजाना बनती है और हम रोजाना ही उठाते हैं, फिर अगले दिन फिर उसी तरह कचरा इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रोजाना उठाते हैं। ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये जाते ही उस वक्त है जब फिर दोबारा पहाड़ियां बन जाती हैं। हाँ। ये सारा दिन कैमरा लेके ना दीवार के पीछे छुपे रहते हैं, पहाड़ी बनी है कि नहीं। भाईजान आप पहले तो आबादी देखें, आबादी के बाद उसके मसाइल देखें और आगे फिर हमारे वसाइल देखें। और मसाइल तो इतने हैं और वसाइल हमारे, ये जो तुम्हारा पतला सा बंदा नहीं बैठा, इतने बड़े हैं। ओ चलो भाई, मान लिया आपके वसाइल काम में, लेकिन आपकी हड्ड हरामी ने उनको भी खत्म किया हुआ है। हड्ड हरामी का ताना मुझे मत दीजिएगा भाई। आधी रात को भी आपकी भाभी मुझे कहना कि घर में कचरा बहुत है, तो मैं डस्टिंग शुरू कर देता हूँ। नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है, फिर वजीर आजम पाकिस्तान का तुम्हारी बीवी को लगा दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जब हमारी भाभी फरमाती है ना घर में कचरा बहुत है, तो बजाय डस्टिंग के आप खुद घर से बाहर तशरीफ ले जाएंगे। देखिए देखिए, ये आप मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। और खुदा के वास्ते अवाम को भी किसी वक्त हमारी भाभी समझ लिया करो, उनकी भी बात सुन लिया करो। कराची है भाई, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, और आपको पता है कि 20,000 टन रोजाना कचरा इकट्ठा होता है जो हमें उठाना पड़ता है। अब भाई कड़ा मुफ्त चुकते हो। तुसी मेरा ख्याल है ना बोलो, अद्धे नालों बहुता गंद तू कल्ला पाना है। कराची का कचरा भी उस बेचारे पे डाल रहा। यार ये वही पाई है जिदे मुतलक मशहूर है, लाहौर शहर तो जंज चढ़ी ते ढोल पशोरों खड़के कराची तक गंद पै जाए। जुनेद भाई मैं आपको जाती अपनी बात बता दूं, 35 साल हो गए इस महकमे में काम करते हुए। अब ये मेरी ड्यूटी नहीं है कचरा उठाना, मेरा पैशन है। जब मैं गाड़ी में जा रहा होता हूं ना, तो यकीन कीजिएगा मेरा तजर्बा बोलता है कि इस साइड पे से जब स्मेल आती है ना कि इधर कितना कचरा पड़ा हुआ है। सर जी ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि मुझे तजर्बा है, स्मेल आ जाती है। जब मैं इनको लेने गया हूँ तो इनके दफ्तर के सामने इतना बड़ा पहाड़ बना कूड़े का, ये नजर ही नहीं आ रहे थे। अरे भाई वो कचरे का ढेर दफ्तर के बाहर इसलिए लगाया हुआ ताकि लोगों को पता हो कि कचरा उठाने वालों का दफ्तर ये है। वो तो मैंने बोर्ड के पैसे बचाए हैं। तो दफ्तर के अंदर भी चले जाए ना तो अल्लाह माफ करे, सारे इंसान हैं, इज्जत करनी चाहिए। ज्यादा कुर्सियों पे कूड़ा ही पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे इन्होंने भर्ती किए हुए हैं जो सियासी भर्तियां हैं, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए वो दफ्तरों पे 2000 से ज्यादा इन लोगों के यहाँ गोश्त मुलाजमीन है, यानी मुलाजमत नहीं है, तनख्वाहें सिर्फ वसूल कर रहे हैं। जी 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 जी, जो फील्ड के काम होते हैं ना, हाँ जी। उसमें अक्सर ये दाल लग जाता है, क्योंकि वो अगर दफ्तर में ना हो तो कह देते हैं जी फील्ड में गए हुए हैं, बात खत्म हो गई। और उसको भी मतला कर देते हैं कि भाई छापा पे है, फटाफट दफ्तर अपड़ो। असल स्यापा ही ये है कि जिस महकमे के अंदर भी आपको कारकर्दगी नजर नहीं ना जी आती, जी जी। वसाइल कम होना अपनी जगह, गोश्त मुलाजमीन होना अपनी जगह, असल बात ही बदनीयती है। बदनीयती उस महकमे में लाजमन शदीद होती है, इसीलिए ही सारा काम खराब होता है। हाँ जी। जितना आपको काम खराब नजर आता है उतनी ही बदनीयती होती है। बिल्कुल। थोड़े मुलाजमों के साथ, थोड़े वसाइल के साथ भी सारे काम किए जा सकते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो। और भैया आप लोगों को हमारी बुराइयां नजर आती हैं। सर मेरी बात सुनिए, आप तो इंसाफ की सीट पे बैठे हैं, खुदारा हमारे लिए भी आवाज उठाइए, हमारे भी बड़े मसाइल हैं। नहीं जी जी, इनकी तनख्वाह कम है जी, इनको जी किराया नहीं घर का सही मिल रहा, इनको TADA नहीं सही मिल रहा, बड़े इनके वसाइल। इनका मौकफ ये है कि हमारे पास जो है इक्विपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, हम मानते हैं, ये देखिए तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है कि इनके पास वसाइल की कमी है। लेकिन अगर वसाइल की कमी है तो आप उस वसाइल की कमी को अपने जज्बे से पूरा कर सकते सर हैं। यहाँ वसाइल नहीं, यहाँ तो शदीद वसाइल की कमी है। ओ भाई, कितनी वसाइल की कमी है आपके पास? जाओ, जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत हम आपको एक ट्रक फ्री देते हैं। एवं ये तुम्हें दिखा बड़ा ट्रक रहा है, इसके पास वो धागे वाला ट्रक है। असल में जुनैद, पूरे कराची में जहां जहां भी गड़बड़ है ना जी, वो सियासी मदाखलत की वजह से बेड़ा गर्क होता है। बिल्कुल। इसी हुकूमत में ही नहीं, पिछली हुकूमतें जो हैं उन्होंने भी सियासी बहुत ज्यादा मदाखलत की है, जिस जिस महकमे में उसका नास बच गया हुआ। इसको तो अब किसी तरीके से कौड़ा कोट करके ना जी, किसी भी गवर्नमेंट को, ये हो या आगे वाली कोई भी हो,
कौड़ा कुट करके दोबारा इस सारे को सीधा करना पड़े। हाँ ये जी। देखो ना, अभी इनको वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने हुक्म दिया है कि बरसात की आमद से पहले पहले जी, जी। ये जितने नदी नाले हैं इनकी सफाई की जाए। हाँ जी। अभी तक उनके हुक्म पे अमल दरामद का आगाज ही नहीं हुआ। यार मुराद अली शाह साहब के तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो मलंग से आदमी है। मुलाकात तो गो अय्यी की नहीं कभी हुई उनसे, मगर मुझे यकीन है कि वो 3-4 बार आप ही बैल बजे आके ना तो उठ के फिर खुद ही चाय ले आते हैं। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੱਕ ਛੱਡੀਦਾ। यार आपके पास मुलजिम ना हो उस वक्त फिर क्या करते? ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਦਈ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। इसको भी अगर तुमने कुट कुट के डकाना ना तो इसने काम नहीं करना। भैया काम दुनिया करे, गवर्नमेंट करे ना काम। हमने आप ही के प्रोग्राम में सुना था कि आपने फरमाया था कि दुनिया में लोग कूड़े से सड़कें बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं और बहुत सा काम ले रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सड़कें बना रही, बिजली बना रही और काम ले रही? के लिए अर्ज है कि ये सारे काम करने के लिए भी एक दफा कूड़ा जमा तो करना पड़ेगा ना। आप तो वही नहीं कर रहे। नहीं, उसका मतलब ये है कि हमने नहीं उठाना कूड़ा, गवर्नमेंट ही आए सड़कों से सारा कूड़ा उठा के बिजली कर ले जाए और उसे गवर्नमेंट ही ओदी बिजली बढ़ाए। सानू सिर्फ तनखा दियो, उसे बिजली नाल एसी चला के सोते रही। भैया इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पैसा फेंक तमाशा देख। भैया जब तक हमारे वसाइल पर गवर्नमेंट पैसा नहीं खर्च करेगी तो काम कैसे होगा? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ। बिल्कुल उसे तरह ही जिस तरह तू रिकॉर्डिंग ते आने ते कहना पहले मैनू रोटी खुआओ फिर मैं रिकॉर्डिंग करांगा। बहुत अच्छे, हमें ही कोसते रहिएगा, हमें ही कोसते रहिएगा, आवाम को कुछ ना कहिएगा। अरे भैया आवाम को भी समझाओ कि खुदारा अपने घर का कूड़ा जो है उसे शॉपर में डाल के या तो डस्टबिन में डाले या घर के बाहर रख दें। लेकिन मेरे भैया हमारी कौन सुनता है? हमारी बहनें तो गली में कूड़ा यूं फेंकती हैं जैसे बॉलर पिच पर गेंद फेंकता है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर अल्लाह आपकी खैर करे, आपने भी कभी अच्छे विकेट कीपर का रोल अदा नहीं किया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, मुसर्रत नजीर साहिबा जिनका ताल्लुक सियालकोट से था, जी। वो ऐसी आई फिल्म इंडस्ट्री में कि उस वक्त की सबसे पॉपुलर, खूबसूरत और बेहतरीन आर्टिस्ट कहलवाई। अच्छा जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स के हवाले से जो गुफ्तगू होती है हर हफ्ते, जी। उसमें आज हम एक लिविंग लेजेंड का जिक्र करेंगे। अच्छा जी। और वो ऐसी एक हमारी खातून आर्टिस्ट हुई हैं जिन्होंने दोनों फिल्म इंडस्ट्री के बड़े शोबों में बड़ी कामयाबी हासिल की है, गुलकारी में भी और अदाकारी में भी। अच्छा। उनका नाम है मुसर्रत नजीर साहब। क्या बात है, मुसर्रत नजीर साहबा जिनका ताल्लुक सियालकोट से था, जी। वो ऐसी आई फिल्म इंडस्ट्री में कि उस वक्त की सबसे पॉपुलर, खूबसूरत और बेहतरीन आर्टिस्ट कहलवाई। को 1950 के दौर में कमाल पाशा साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं और राइटर हुए हैं। बड़े वो दानिश्वर समझे जाते थे फिल्म इंडस्ट्री की। जी जी। तो उनका अदारा था बहुत बड़ा, बड़ी तगड़ी फिल्में उनकी बनती थी। उन्होंने एक छोटे से रोल में मुसर्रत नजीर साहिबा को कास्ट किया। अच्छा। मगर वो छोटे से रोल से ही अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से पूरी इंडस्ट्री की आंखों में आ गई। हाय हाय हाय। फिर लुकमान साहब ने उन्हें उस वक्त के बहुत बड़े हीरो संतोष कुमार साहब के साथ हीरोइन के तौर पे कास्ट किया। जी, पहली फिल्म में। जी जी, पहली फिल्म एज हीरोइन। और पंजाबी फिल्म थी, पतन नाम था उसका। जुबैदा खानम साहिबा की आवाज में गाया हुआ गाना मुसर्रत नजीर साहिबा पे पिक्चराइज हुआ। छड़ जावी नचना बां फड़ के, ओए होए होए होए, इस कदर हिट हुआ ये गाना। सारा ही उसका म्यूजिक बहुत अच्छा। अच्छा, उस वक्त मुसर्रत नजीर साहिबा का जो मुकाबला था, कंपटीशन था जो उनका, हाँ जी। वो बहुत बहुत बड़ी हीरोइंस के साथ था, जिनमें मैडम नूर जहान, यास्मीन साहिबा, सबिया खानम जैसी हीरोइंस थी उस वक्त। और नीलो जी। हाँ हाँ हाँ, राज कर रही थी जी इंडस्ट्री पे। मगर मुसर्रत नजीर साहिबा ने इनके अंदर रह के
बड़ा नाम कमाया और सफ़े अव्वल की अदाकारा कहलाई। क्या बात है जी। मतलब टाइटल रोल मिलना शुरू हो गए और नंबर 1 अदाकारा बन गई। 1956 में फिर MJ राणा साहब की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म थी माही मुंडा, उसका टाइटल रोल मिल गया, फिल्म सुपर हिट हुई। उसके बाद उनकी हर फिल्म इस सुपर हिट। यके वाली, हो यके वाली के मुतल्लिक क्या कहा जाता है ना जी, कि ये स्टूडियो पूरा बन गया था उसके बारी स्टूडियो। प्रॉफिट से। बारी स्टूडियो के जो बारी साहब जो मालिक हैं, उन्होंने चूंकि वो बनवाई थी, फिल्म साज वो थे, हाँ जी। वो कहते हैं कि वो यके वाली की कमाई से उनका स्टूडियो ये बन गया था, इतना बड़ा बारी स्टूडियो। और आप हैरान होंगे कि उस वक्त फिल्म पे पैसे कितने लगे थे। ये 1 लाख रुपए में सारी फिल्म बनी थी। यके वाली। जी सर, जिससे स्टूडियो बन गया था। वाह वाह। ये बॉक्स ऑफिस पे उसकी कमाई इतनी थी कि उस वक्त लाखों रुपए कमाए गए। 4 मिलियन कहते हैं कि उस वक्त इसकी कमाई हुई थी। अरे वाह। आज तक ये रिकॉर्ड मौजूद है। इतनी कम लागत से बनी हुई जो फिल्म है और इतनी सुपर हिट और इतनी ज्यादा उसकी आमदन। जी है। उसके बाद इनकी फिल्म आई करतार सिंह। हो वाह वाह। मैं कहता हूं जी, कहानी, किरदार निगारी, म्यूजिक, हर शोभा उसका कमाल था। ऐसी क्लासिकल फिल्म बनी वो कि वो सिर्फ पाकिस्तान में सुपर हिट नहीं थी जी, वो इंडियन पंजाब में भी मुसलसल 3 साल कामयाबी से नुमाइश लगी रही। हाँ, और उस फिल्म में मुसर्रत नजीर साहबा पे पिक्चराइज हुआ गाना जिसे सैफुद्दीन सैफ ने लिखा था। बहुत बड़े शायर हुए हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हुए हैं सैफुद्दीन सैफ साहब। गोरी गोरी चांदनी ते ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, दिल कर चलदा मैं मुंह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी। इसी तरह मुसर्रत नजीर साहिबा ने कोई 8 साल अदाकारी के अपने कैरियर में 40 के करीब फिल्में की, जी। बड़ी बड़ी कमाल, जिसमें शहीद खलील कैसर की हिदायतकारी में, क्या फिर दर्पण की फिल्म गुलफाम, फिर पाटे खां, उसके बाद बागी, जिसमें पहली दफा सुल्तान राय साहब सिल्वर स्क्रीन पे एक एक्स्ट्रा के तौर पे आए थे। फिर पींगा, गुड्डी गुड्डा, जट्टी, मुखड़ा, बेशुमार फिल्में और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में दी हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर अपने अरूज में ही शादी करके कनाडा चली गई। अब आते हैं मुसर्रत नजीर साहिबा की गुलकारी की तरफ। जी। ये जो आजकल आतिफ असलम ने वो गाना नहीं गाया जी, चले तो कट ही जाएगा हाँ सफर, नजीर साहिबा की गाई हुई गजल है जो उन्होंने 1980 की दहाई में कनाडा से आके गाई थी। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। वो जो गानों का एल्बम आया है, हाय हाय पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल वेंदा आई, चीरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंग गवाचा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਾਚਿਆ ਲੌਂਗ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਲੌਂਗ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੇ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ। अजीजी मेरा ख्याल इसी एल्बम का गाना था, मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ, ये भी उसी का था। पूरा फिर एल्बम मशहूर हुआ था जी। लट्ठे हाय ओ मेरे आडा डिया रब्बा किन्ना जमीਆਂ किन्ना ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਪਾਈਆ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਮਾਈਆ। आज भी हमारे यहाँ मुसर्रत नजीर के टप्पों के बगैर शादी मुकम्मल नहीं होती। क्या बात जी, सूए विचीरे वालिया मैं कहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बहनिया। सारे लोग छतरियां लेकर निकले। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, जहां भी हैं अपने बच्चों में खुश रहें। हमारे मुल्क का वो बहुत बड़ा सरमाया है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, हमारी कौम की बड़ी शान है वो नजीर साहब। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि बुजुर्ग कहते हैं हमारी ज़िंदगी का निचोड़ यही है कि जो बंदा आपको उम्र भर मक्खन लगाता है, आखिरकार वही आपको चूना लगाता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।